Mr. Akash Sharma and welcome the Raghuvansh Convent School students. This is your computer grade class 10 subject computer or chapter 4. Chapter 4, the name of chapter is building the database. Database जो चैप्टर 3 था हमारा इससे पहले उसको हमने कंप्लीट कर लिया था, उसका एक्सप्लेनेशन, उसके आपको नोट्स वगैरह जो है PDF में आपको सेंड कर दिए जाएंगे, तो आप उसमें से कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी आज हम चैप्टर 4 को कंटिन्यू करने वाले हैं। Building the database. Introduction. In the previous chapter we had learned about the creating a database from local template and online template, various components and parts of data sheet and different data types. In this chapter we will learn about working with MS Office Access 2007 and learn the step of setting up a database, setting up tables according to our example of students information, setting up the field for each table, including establishing what database can be entered in a given field. You know how to create a database. Before learning about setting up a database, let's learn about the method of saving a database. Once you create and give a name to your database, the file is automatically saved in the path mentioned below the file name box. Let's take a quick recap of this. Click on Office button, all programs, MS Office, Microsoft Office Access 2007 and the getting start with Windows page open. Click on blank database to create a new database. The screen is shown in figure 4.1. Give a name to your file. Here we will name the file as student information. Click on create. The file will be created with the name student info asset in user admin documents. Okay, so click on Office button and you can see the nearly create and saved file on the right side. Place the cursor on the file name and you can see the path of file location along with the file extensions. इंट्रोडक्शन से हमको ये पता चलता है, इससे जो डाटाबेस है इससे रिलेटेड पिछला चैप्टर था उसको हम अच्छे से देख चुके थे। उसमें डाटाबेसेस से जैसे कि रॉ और कॉलम्स में एक्सेल के यूजेस को समझाया था। अब इसमें भी हमको विंडोज के यूजेस को समझा रहे हैं। विंडोज 2007 के बारे में, इसमें MS विंडोज जो होती है उसमें 2007 का जो विंडो है उसका फीचर्स के बारे में हमको यहाँ पे बताया जा रहा है। इस चैप्टर में आप ये देख रहे हैं कि जो डाटाबेसेस हैं उसको किस टाइप से स्टेप बाय स्टेप ओपन करके फाइल्स को क्रिएट करना, सेव करना, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें पॉसिबल हो पा रही हैं। तो ये आप इस चैप्टर में देखेंगे। सेटिंग अप टेबल्स। सेटिंग अप टेबल्स के लिए क्या होता है, once a new database is created, the open the one table is shown as difficult in the navigation pane and it's also in the table tab. यहाँ पे आपको इस टाइप से डायग्राम भी दिया हुआ है इसका। आप फिगर आप 4.3 देखेंगे, ये देखिए दिया हुआ है इसमें। तो इसमें आप देखेंगे कि आपको डाटाबेस का जो हेडलाइट करके येलो कलर का बॉक्स इसमें दिया हुआ है, टेबल टूल के जस्ट नीचे आप इसमें आपको डाटा शीट का जो ऑप्शन मिलता है उस पर आप इसमें क्लिक करके नेम निकाल सकते हैं। नेमिंग अ टेबल, हमारा जो प्रेजेंट टेबल है या जो शीट हमने रेडी की है उसकी नेमिंग करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप होता है। क्योंकि हम जब इस फाइल को सर्च करेंगे या फिर हम इसको अभी हटा देंगे, बाद में कभी इसको 1-2 दिन बाद, 4-5 महीने बाद कभी भी इसको देखेंगे, तब उस टाइम पे इसका मिलना बहुत ज़रूरी है। तो उसको हम सारी इंफॉर्मेशन इसमें से ढूंढ पाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसका एक पर्टिकुलरली नेम रख करके हम इसको सेव करें जिससे कि हम डायरेक्टली इसको ढूंढ सकते हैं। To give a new name to the table, click on the Microsoft Office button. यहाँ पे Microsoft Office button पे आप क्लिक करें। Click Microsoft Office button in the upper left hand corner of the application. Click on Save button. A Save as window will appear. Give the name of the table. आप Save window पर जाएंगे, वहाँ से आप Save as पे जाकर के इसका new name जो भी आप देना चाहें
वो उसको दे सकते हैं। इसका यहाँ पे आपको ये टेबल में दिखाया भी गया है। इस टाइप से आपको सेव एज़ का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें से आप अपनी फाइल का यहाँ पे कोई भी नेम रख सकते हैं। नेक्स्ट वी विल नेम आवर टेबल एज स्टूडेंट इन्फो एंड प्रेस ओके। नाउ यू विल सी द न्यू टेबल नेम इन द नेविगेशन पेन एंड टेबल टैब। यहाँ पे आपको जो आपने न्यू नेम रखा है उसका वो न्यू नेम आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इस टाइप से आपका जो नेमिंग होता है टेबल का, इस टाइप से आप कर सकते हैं। अब है रीनेमिंग अ टेबल। हमने टेबल का नेम तो कर दिया, लेकिन उसी नेम का हमको पता चला पहले से भी कोई फोल्डर है या पहले से भी कोई फाइल उसी एसिटिक नेम से सेव है। तो जब हम इसको निकालेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो हमको क्या करना है, इसका रीनेमिंग करना है। यानी नेम तो रखा हो चुका था, लेकिन अब हम इसको हटा करके कोई दूसरा नेम हम रखना चाहते हैं। तो रीनेमिंग के लिए यू कैन रीनेम द टेबल इफ यू विल दैट इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड और लॉजिकल। राइट क्लिक ऑन द टेबल नेम इन द नेविगेशन पेज। यू विल फाइंड एन ऑप्शन रीनेम इन द मेन्यू। यहाँ पे आप राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करने पे आपको रीनेम का ऑप्शन इस टाइप से मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं डायग्राम में रीनेम का ऑप्शन मिलेगा, तो आप उस पर क्लिक करें। नोट in order to rename a table, the table has to be closed first। पहले आपको उसको क्लोज करना पड़ेगा। आप ओपन फाइल में आपको रीनेम का ऑप्शन नहीं मिलेगा, पहले आप उसको क्लोज करें तब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको रीनेम का ऑप्शन मिलता है। क्लोजिंग टेबल, हमको हमारे टेबल को क्लोज करना है। तो क्लोजिंग के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बाद सिस्टम पे कोई इसको यूज करे या देखे, तो हम इसको क्लोज करना चाहते हैं। तो द सिंपलेस्ट वे टू क्लोज एंड open or active table is to right click on the table tab and choose close from the menu। see the figure below 4.7। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जो टेबल टैब है उसमें राइट क्लिक करना है और वहाँ पे आपको काफी सारे फीचर्स मिलेंगे। सबसे पहले सेव, फिर क्लोज ऑल। उसमें से आप क्लोज वाला जो फोल्डर है उसको आप ऑप्शन है उसको आप चूज कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। The table portion will disappear from the database window। Now click on the table name in the navigation pane and click on rename। The following windows appear। तो इस टाइप से अगर आप इस पर रीनेम पे क्लिक करके ऑपरेटिंग सिस्टम के करेंगे तो यहाँ पे आपका सिस्टम इन स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन नाम से जो हमने सेव किया था, इसको हमने रीनेम किया हुआ था, वो हमको ऑप्शन मिल जाएगा। हमारी फाइल जो थी वो यहाँ पे मिल जाएगी। यू कैन सी दैट द टेबल नेम बॉक्स इट highlighted and it is ready to access the new name। just type the new name, let's rename it is student details। so you can see the new table name as shown in figure below। यहाँ पे आपको 4.9 फिगर आपके देखेंगे, ये सबसे ऊपर दिया हुआ है। तो जो हमने रीनेम किया था स्टूडेंट इन्फो से स्टूडेंट डिटेल्स में, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। ओके स्टूडेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शंस द क्लोज टेबल। ऑप्शंस जो क्लोज टेबल करने के जो ऑप्शंस हैं, इस यहाँ से अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चैप्टर आपका इजी है, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, मैं कहूँगा 4-5-6 पेज ज़्यादा हैं इसमें, लेकिन बहुत इजी है क्योंकि इसमें सारे फंक्शंस के बेसिकली जो किस टाइप से वर्क करते हैं ये है। एक्चुअली ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा थ्योरेटिकली ही है, लेकिन इसको हम सिस्टम पे जब तक करके नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ यहाँ क्लिक करें वहाँ क्लिक करें तो आपको समझ में नहीं आ पा रहा होगा। जब हम इसको सिस्टम पे करके देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। सो आप जैसे ही ऑफलाइन स्टार्ट होते हैं इन सारे चैप्टर्स का प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम एंड